हेलो डियर स्टूडेंट आज जीवा नीट 2020 माने आज जो नीट एग्जाम रो फिजिक्स पेपर सॉल्व करवा क्वेश्चन बहुत इजी थिला प्रीवियस ईयर मानकर जेमती पड़े ताटू बहुत इजी थिला ए वर्ष सो जीवा गोटे पर गोटे क्वेश्चन को सॉल्व करवा सी हियर द फर्स्ट क्वेश्चन द टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg और 10 kg रेस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ a rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of सेंटर ऑफ मास रो फास्ट जीवा जे सेंटर ऑफ मास रो फार्मूला कोन जदि एटा होची देखो मास m1 एटा होची मास m2 सेंटर ऑफ मास m1 रो लेट x डिस्टेंस रे आसीबो टोटल डिस्टेंस होची r तो फार्मूला होची सेंटर ऑफ मास रो x m2 सेकंड मास इनटू r बाय m1 प्लस m2 ए दिस इज द फार्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास सो हियर दैट इज 5 kg and here this is 10 kg. Let center of mass question अच्छी from 5 kg. So this is x total distance is 1. So use कर formula x is equal to m2 means 10 kg into r 1 by 5 plus 10 that is 10 by 15 by 2 3 that is 2 by 3 meter that is 2 by 3 into 100 centimeter 200 by 3 that is 66.6 nearly equal to 67. So option D option it is 67 centimeter achi. Option D is the correct answer. Okay. A wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. The expression of a Young's modulus. देखो एमदा सिचुएशन अच्छी एटा गोटे रिजिड सपोर्ट अच्छी गोटे वायर अच्छी लेंथ एल इनिशियल कंडीशन देन आम कौन करवा ना सस्पेंड करवा सस्पेंड कला परे एटा कौन होची ना ए जो लेंथ ऑफ वायरटा अच्छी एटा एलोंगेट कर जिवो लेट एलोंगेट करिगला ए जाय एटा होची वेट mg तळक रहउची गिवन देजी द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 माने एबे इनिशियल केते हे गेला इनिशियल थिला L फाइनल लेंथ रे केते हेउची ना L1 तले इंक्रीज इन लेंथ केते del L हेउची L1 minus L सो del L हम पाउचे L1 minus L सो यंग्स मॉडुलस फार्मूला होची बा y स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जदि फार्मूला मने नाही स्ट्रेस बाय स्ट्रेन स्ट्रेस होची फोर्स बाय एरिया स्ट्रेन होची चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ सो फोर्स F बाय एरिया A del L so F यूज करबा mg weight mg is equal to force so L given length रहिला by area A increase in length केते ना del L होची L1 minus L initial length हला L final एटा होची initial length final length होची L1 so L1 minus L is correct answer देखो mg L by A into L1 minus L mg L by A into L1 minus L yes this one is correct answer A. A ball is thrown, next question, a ball is thrown vertically downward with a velocity 20 meter per second from the top of tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of tower is, very simple question, diagram को जीवा, गोटे height रो आमे body को तल को downward fall करूचे, but free fall motion नहीं, initial velocity given अछि, so initial velocity 20. That is u final velocity कहते हैं ना 80 that is v equation में motion of use करो v square minus u square is equal to 2gh so v is that is 80 रो square minus 20 रो square that is 2 0 value 10 अच्छी जो 20h that is 6400 minus 400 that is 20h so this is 6400 minus 400 that is 6000 is equal to 20h that is answer is 300 meter so 300 meter is correct. Next question, a short electric dipole has a dipole moment of 16 into 10 to the power minus 9 coulomb meter. The electric potential due to the dipole at a distance of 0.6 meter from the center of dipole situated on a line making an angle 60 degree with the dipole axis. That means here question is of electric potential रे question dipole रो जोगु potential केते at any point रो जदि हम देखिबा dipole रो axial equatorial बाहर करछे बट any point रे कोन आसीबो देखो एटा होची नेगेटिव चार्ज
एटा होची पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द लाइन, दिस इज द पॉइंट, लेट एंगल इज गिवन 60 डिग्री। सो ए पॉइंट पोटेंशियल फॉर्मूला कौन ना पोटेंशियल एट एनी पॉइंट फॉर्मूला होची p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अच्छी माने 9 × 10⁻⁹ इंटू p केते अच्छी 16 × 10⁻⁹ इंटू cos 60 दैट इज 1/2 बाय 4 r स्क्वायर अच्छी 0.6 0.6 0.6 इंटू 0.6। सो एटा सॉल्व कले 9 दिस इज 2 8 दिस इज 6 6 दैट इज 0.36। सो 9 × 8 बाय 36 × 10⁻⁻2 that is 4 or 2. So answer is 200 volt. So option C is correct answer. Next question, a long solenoid of a 50 centimeter length having 100 turns carries a current of 2.5 ampere. The magnetic field at the center of solenoid. A question होची magnetic effect of electric current रो solenoid रो question. solenoid current carrying solenoid रो center रे magnetic field केते आसीबो formula होची B is equal to mu naught small n into I or mu naught small n होची number of turns per unit length. So जदि number of turns per unit length given नाही then use करिबा total number of turns by total length. जोटा क्वेश्चन अनुसार ये फॉर्मूला सुइटेबल देख लॉन्ग सोलेनॉइड लेंथ देछि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देछि। सो यूज करो दिस वन म्यू नॉट रो वैल्यू गिवन अछि 4 पाई × 10⁻⁷। सो 4 पाई × 10⁻⁷ into number of turns 100 that is current is given 2.5 and length is given in centimeter. So convert it into meter 50 centimeter that is 50 × 10⁻². Okay. Then it will solve kariba that is 10⁻², 10⁻⁵, it is 50, this is 2. So 4 pi into 2.5 into 2 that is 5 into 10⁻⁵. So power value 3.14 into 5 into 10⁻⁵. So ako multiply kala pore eta kete hochi 5 into 4 that is 20. So 20 into 3.14 into 10⁻⁵. that is 30 एटा होछि कते मल्टीप्लाई कले एटा आसीबो 8 to 6. So 62.8 into 10⁻⁵. So option 62.5 नहीं then गोटे डेसिमल पछु कानो 6.28 into 10⁻⁴ टेस्ला. So option B is correct answer. Next question होची Young's double slit experiment wave optics रो in Young's double slit experiment if the separation between the coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent sources is doubled then the fringe width माने जदि हम डायग्राम करिबा दिरा स्लिट रहिबो एमति दिरा स्लिट रहउची एटा होची स्क्रीन एटा होची स्मॉल d एटा होची कैपिटल D. फॉर्मूला होची फ्रिंज विड्थ रो बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d. क्वेश्चन पचारछि एदिरा सोर्स भीतर ना ए जो स्लिट रु स्क्रीन एटा होची स्लिट एटा होची स्क्रीन डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेस बा स्लिट बा सोर्स एटा होची कोहेरेंट सोर्स ए दिटा को कोहेरेंट सोर्स रु डिस्टेंस टा डबल करिबा माने ए जो स्मॉल d को देखो एटा होची कोहेरेंट सोर्स भीतर डिस्टेंस होची स्मॉल d ए स्मॉल d को हम कौन करिबा ना हाफ कर देबा देखो एटा को हाफ कर देबा ताने बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा d बाय 2 देन डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स माने कैपिटल D को डबल कर देबा एटा डबल करले केता होची 2d. सो फाइनल केते होचे ना 4 लैम्बडा d बाय d जदि कंपेयर करिबा ताले 4 टाइम्स इंक्रीज करि जाउची. सो आंसर इज D, ऑप्शन D इज करेक्ट आंसर. सो ए क्वेश्चन होची फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस रो क्वेश्चन ट्रांजिस्टर रे कोन होय जो तीनटा टर्मिनल अछि एमिटर बेस कलेक्टर तो सेथुर देछि का डोपिंग लेवल और साइज अनुसार क्वेश्चन देछि. द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड. यस दिस इज करेक्ट कहीं ना एमिटर होची सबटू हाईएस्ट डोप्ड एंड कलेक्टर होची सबटू लार्जेस्ट साइज. सेकंड ऑप्शन जो बेस एमिटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग लेवल. नो डोपिंग
लेवल होची सबुठु अधिक होची एमिटर रो देन कलेक्टर तापर होची सबुठु लाइट डोप्ड होची बा कम डोपिंग होची बेस रीजन रो सो ये ऑप्शन हबनी बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज केबे भी हबनी कलेक्टर अधिक साइज देन होची एमिटर तापर होची बेस देन बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस्ड नो कहीं ना एमिटर जंक्शन होची फॉरवर्ड बाइस्ड क्वेश्चन इज आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर मीटर इनवर्स द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ रॉड इज माने ये ससेप्टिबिलिटी परमेबिलिटी भितर रिलेशन को जब आम जा इजिली आंसर पाई रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी so susceptibility given that is 1 plus 599 that is 600 then use करिया relative permeability रो formula कौन ना mu by mu naught means permeability of the material by permeability in free space is equal to 600 so mu is equal to 600 into mu naught रो value given अछि that is 4 pi into 10 to the power minus 7 so एटा multiply करिवा मल्टीप्लाई कले केते पहुँचे 2400 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 दैट इज 24 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सॉरी माइनस 7 नहीं दैट इज माइनस 5 सो देखिबा ए फॉर्म रे आंसर अछि नो बट इट मे बी 24 एटा हम लिख पारे 24 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर A ray is incident at an angle of जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को A ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism with angle of prism A and emerges normally from the opposite surface if the refractive index of the material prism is mu then the angle of incidence is nearly equal to ये क्वेश्चन होची डिस्पर्सन लो ऑप्टिक्स रो डिस्पर्सन लो क्वेश्चन जीवा फास्ट डायग्राम करिवा क्वेश्चन को नै कि दिस इज इंसिडेंट एंगल ना इंसिडेंट रे दिस इज नॉर्मल दिस इज आई इंसिडेंट एंगल लाइट रे देखो नॉर्मली इंसिडेंट हबो दिस इज 90 नॉर्मली इंसिडेंट देखो इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस माने ये लाइट रेटा नॉर्मल जदि जाउची ताले ए एंगल होची केते ना 90 ए एंगल होची ए एंगल होची लाइट थीटा ए एंगल होची आर सो ये जो राइट आमे जो ट्रायंगल देखुचे ए ट्रायंगलटा तीनटा कोणरो माने आमे ए जो देखो ए जो ट्रायंगल को जिबा ए ट्रायंगल रे देखो 90 प्लस ए प्लस थीटा केते पाइबा 180 ता माने थीटा केते पाउचे ना 180 माइनस 90 माइनस ए ता माने 90 माइनस ए थीटा पाले 90 माइनस ए देखो एटा होची नॉर्मल एटा नॉर्मल मींस ए टोटल एंगल टा होची केते ना 90 ता माने 90 इज इक्वल टू थीटा प्लस आर सो आर केते पाई गेले ना 90 माइनस थीटा सो ऑलरेडी हम थीटा पाइचे 90 माइनस ए सो 90 माइनस 90 प्लस ए सो आर आम पाई जाउचे ए ओके बोल से बुझियला एटा आर हम केते पाइले ना आर पाइले ए देन जिबा स्नेल्स लॉ को स्नेल्स लॉ होची μ1 sin i इज इक्वल टू बा sin i बाय sin r sin i बाय sin r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu मीन्स sin i इज इक्वल टू mu sin r जेहेतु स्मॉल एंगल प्रिज्म देछि ता माने sin i नियरली इक्वल टू i देन sin r नियरली इक्वल टू r so I is equal to mu r means mu a so option D is correct answer okay बुझियला फास्ट ए ट्रायंगल हो गले एटा होची 90 90 ए थीटा होची 180 ए थ्रू थीटा पाई गले देन ए थीटा आर ए एंगल टा होची 90 कने एटा होची नॉर्मल ए नॉर्मल टा ड्रा करछे देखो ये आर प्लस थीटा होची 90 देन एटू आर पाई गले ए कने ये थीटा वैल्यू ने सब्स्टिट्यूट करले देन स्नेल्स लॉ यूज करले स्मॉल एंगल प्रिज्म अछि sin i इक्वल टू i sin r होची r स्मॉल एंगल केस रे मन रखिबो sin i नियरली इक्वल टू i sin r नियरली इक्वल टू r so option D is correct answer then when a uranium isotope 92235 is bombarded with a neutron it generate krypton 3 neutrons and no doubt
एयर आंसर होची ऑप्शन बी दैट इज बेरियम। एटा को तुम बैलेंस भी करि परिबो। तो देखिबा यूरेनियम 92 235 प्लस न्यूटन रहिबो लेफ्ट साइड रे। देन आम पाउचे क्रिप्टन। क्रिप्टन इज 36 89 प्लस 3 न्यूट्रन। सो आम एटा को बैलेंस भी करि परिबा। जदि बैलेंस करबा एटा होची 92 एटा होची 36 सो 92 माइनस 36 that is 6 here it is 5 so 56 so 56 that is barium। एटा भी मन थो फिशन रे एटा होची इंपोर्टेंट रिएक्शन टा। सो फिशन जोड़ा होची हमर न्यूक्लियर फिजिक्स रे क्वेश्चन। न्यूक्लियर फिजिक्स रे न्यूक्लियर फिशन रे क्वेश्चन एटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज नियरली। सो ये हूँ अल्टरनेटिंग करंट क्वेश्चन। आई आर एम एस इज इक्वल टू जदि आम जा केवल कैपेसिटिव सर्किट अच्छी सो आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस मान वोल्टेज आर एम एस वोल्टेज को यूज करवा दैट इज वी आर एम एस बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जमती रेजिस्टिव सर्किट रोचे रेजिस्टेंस सेमती कैपेसिटिव सर्किट जो अपोजिशन ऑफर्ड टू द करंट दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस जार सिंबल होची एक्सी। एक्सी आम जाने 1/2πfc। सो ये पुट कले सो एबे नहीं कि पुट करवा देख वी आर एम एस एक्स भैल्यू को डायरेक्ट पुट न करी एटा जो मल्टीप्लाई करदे 1/2πfc 1/2πfc इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू 2 इंटू 5 इंटू एफ इंटू सी। सब्स्टिट्यूट करदे वी आर एम एस अच्छी 200 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी अच्छी 50 इंटू कैपेसिटेंस अच्छी 40 माइक्रोफैराड। सो 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस। सो देखो दैट इज 200 दिस इज 50 दैट इज क्लियर इंटू that is 40 that is 80 into 3.14 into 10 to the power minus 6 so 1 2 3 4 5 that is minus 1 so 8 into 3.14 by 4 into 10 to the power minus 1 so एटा को सॉल्व कले पाखापाखि आछि 2.5 okay so option D is correct answer। Question the energy required to break one bond in DNA is 10 to the power minus 20 joule। This value in electron volt means it conversion of a joule को हम electron volt करिवा। So first हम जानिया दरकार 1 electron volt केते joule that is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule। Then 1 joule केते हिजो ना 1/1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt बा एटा होची 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटा होची 1 जूल वैल्यू। देन 10 टू द पावर माइनस 20 अच्छी सो 10 टू द पावर माइनस 20 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 20 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज okay this is minus 20 this is 18 so hela pare eta lela 2 that is 6.25 into 10 to the power minus 2 electron volt। जो चॉइस को जीवा एटा अप्रोक्सीमेट नबा 10 to the power minus 2 माने एटा हेगला 0.0625 so option D is correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए होची फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डुअल नेचर क्वेश्चन इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल माने लाइट जति एति टाइम्स गोटे फ्रिक्वेंसी को आम कौन करुचे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी 1.5 टाइम्स को इंसिडेंट कराऊे फोटो सेंसिटिव मटेरियल मीन्स से कंडक्टर उपर व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रिक्वेंसी इज हाफ्ड एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड। मन रखा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के फ्रिक्वेंसी उपर डिपेंडेंट नुहे सो केवल इंटेंसिटी पर डिपेंड करे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी सो इंटेंसिटी डबल मीन्स नो डाउट फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी डबल। Okay, photoelectric current does not depend on the frequency of incident radiation। Okay, next question को जीवा तो capacitance of a parallel plate capacitor with air medium is 6 microfarad with introduction of a dielectric medium the capacitance becomes
30 माइक्रोफाराड, एयर रे थिला 6, मीडियम रोज 30 माइक्रोफाराड। पचार परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे हमको फास्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाहर करके पड़ो, दैट इज कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन एयर इंटू के। सो के इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन मीडियम दैट इज 30 बाय कैपेसिटेंस इन मीडियम दैट इज 6। सो 30 बाय 6 दैट इज 5। परमिटिविटी ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर्मूला बा रिलेटिव परमिटिविटी फॉर्मूला के होची एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के दैट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू के वैल्यू केते अच्छी दैट इज 5। सो आपको मल्टीप्लाई कला परे आंसर केते पाइबा देख, मल्टीप्लाई कले आम पाचे 44.25 इंटू 10 टू द पावर -12 दैट इज 0.44 इंटू 10 टू द पावर -10। So option D is correct answer. Next question को जीवा, an electron is oscillated from rest through a potential difference of V volt. If the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 10 to the power -2 nanometer, the potential is. So ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिवा de Broglie wavelength लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 बाय पोटेंशियल डिफरेंस √4 आर्मस्ट्रंग रे रहिथिबो। बट एठी वेवलेंथटा हम जेटा पाउतले एटा को वेवलेंथ आर्मस्ट्रंग रे, बट ये केस कौन कि लैम्बडा देछि भी पचारछि। सो आम लिखिपर दैट इज 12.27 बाय लैम्बडा। सो ये केस आम लैम्बडा को कौन करवा ना आर्मस्ट्रंग कन्वर्ट करवा 1.227 इंटू 10 टू द पावर -2 नानोमीटर। नानोमीटर मीन्स पावर हूँ 10 टू द पावर -9 -10 को कन्वर्ट करवा दैट इज केते हिजबो ना 1.227 इंटू 10 टू द पावर -1 आर्मस्ट्रंग। सो ये पुट करदे ये 12.27 बाय 1.227 इंटू 10 टू द पावर -1 बा एटा को हम लिखिपर 0.1227 इंटू 10 टू द पावर तो गला 0.1227। सो एमती लिखिपर 1227 बाय 1227 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -4 दैट इज 10 टू द पावर 2। सो भी केते हिजबो भी हिजबो 10 टू द पावर 2 रो स्क्वायर दैट इज 10 टू द पावर 4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। So next question को जीवा, assume the light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of a telescope whose objective has a diameter of 2 meter is. Means limit of resolution को जीवा पहले तुम दीटा फॉर्मूला मन रखा पड़ियो। फास्ट होची मन रखियो limit of resolution is equal to reciprocal of resolving power of telescope। देन हमको रिजल्विंग पावर बाहर करिया पड़ियो दैट इज d बाय 1.22 लैम्बडा। डायमीटर ऑब्जेक्टिव रो डायमीटर लैम्बडा होची वेवलेंथ। देन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को जदी जीवा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज इक्वल टू 1 बाय रिजोल्विंग पावर यार रेसिप्रोकल नेले केते आसीबो 1.22 लैम्बडा बाय d दैट इज 1.22 लैम्बडा इज गिवन 600 नानोमीटर ताको मीटर करिवा बाय डी अच्छी 2 मीटर। सो एटा को सॉल्व कले इंटू 10 टू द पावर -7 रेडियन। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडी R1 एंड R2 थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो। मीन्स एठी क्वेश्चन जदी ए क्वेश्चन होची हीट फेनोमेना रो फार्मूला होची ms del T दीटा पड़ी देछि। सो Q1 बाय Q2 टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम देछि। सो m1 by m2 इंटू स्पेसिफिक हीट सेम कहना बॉडी सेम अच्छी। सो del T by del T देख एटा कटिज तो m1 by m2। मास को आम रेडियस सहित केमती देख ये केस कौन हो ना सेम कपर रो डेंसिटी कांस्टेंट रहिबो। सो मास m को आम लिखि परिबा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ता माने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाय वॉल्यूम टू इंटू डेंसिटी दैट इज 4/3 phi r3 बाय 4/3 phi r2 रो क्यू बा डायरेक्ट यूज कर परिबो q1 by q2 इज इक्वल टू r1 by r2 रो होल क्यू दैट इज r1 by r2 is given here r1 is 1.5 r2
So R1 by R2 is 1.5 Q, that is 15 by 10 Q, 3 2, that is 27 by 8. So option B is correct answer. Next question को जीवा, the increase in the width of a depletion region in a PN junction is due to, that is reverse bias. Reverse bias रे कौन हुए ना further diffusion है पारे नहीं. So reverse bias connection यदि हम PN junction को जीवा, this is PN junction. Reverse bias रे P connect हो negative को, N connect हो positive को. So ए केस रे depletion layer width जहाँ initially अच्छी negative terminal hole को pull करिवो away from the junction. ये इलेक्ट्रॉन को पुल करिवो अवे फ्रॉम द जंक्शन, सो दैट डिप्लीशन लेयर विड्थ कौन हम इनक्रीज करिजो इन केस ऑफ रिवर्स बायस. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. जदि आम अर्थ सरफेस रु ऊपर को जीवा तो जी रो वैल्यू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन करे ना डिक्रीज करे. आम जाने वेट फर्मूला W इज इक्वल टू m इंटू जी. आट सर्टन हाइट जब ये अर्थ सरफेस हुए आम हाइट के हाइट को जीवा ना एज हूँ r/2, देन एटी वेट के जाऊँ ना W डैश, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी डैश लेट. बट W डैश आम बाहर करवा देन आग आमको जी डैश बाहर करा पड़ो. जी डैश फर्मूला कौन, अर्थ सरफेस रु एच हाइट रे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू माने सरफेस रो वैल्यू इंटू r स्क्वायर बाय r प्लस एच रो स्क्वायर. ओके, सो सॉल्व करिवा जी r स्क्वायर बाय r प्लस दिस इज r/2 रो स्क्वायर. सो जी r स्क्वायर बाय दैट इज जी इटर होल स्क्वायर अच्छी जी आर स्क्वायर बाय इंटू 4 पड़ेगा 2 रो स्क्वायर 4, दैट इज 3r स्क्वायर 3r स्क्वायर 3 बाय डायरेक्ट कर दूँ ये जी आर स्क्वायर बाय दैट इज 3r बाय 2 रो स्क्वायर, दैट इज जी आर स्क्वायर बाय 9r स्क्वायर 4 ऊपर को जीवो r स्क्वायर कटिगला. सो 4g बाय वेट आम डबल डैश बाहर करवा, दैट इज m g डैश, दैट इज m g केते अच्छी g डैश आम केते पाउचे ना 4g बाय 9. सो g डैश को आम सब्स्टिट्यूट करवा 4g बाय 9, 4g बाय 9 दैट इज mg इंटू 4 बाय 9. mg वैल्यू केते अच्छी 72, तो 72 इंटू 4 बाय 9 दैट इज 8, that is 8 into 4 32. So option 3 is correct. 30 of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the string of the system in terms of acceleration due to gravity. बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट फर्मूला भी अच्छी. जब फर्मूला को यूज करवा a इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 हूँ बिगर मास g बाय m1 प्लस m2. m1 is bigger means 6 minus 4 by 6 plus 4 into g, that is 6 minus 4 2 by 10 g, that is 5. So answer is g by 5. So option D is correct answer. जदि फॉर्मूला मन नहीं ताले कौन करिवा ना नेट फोर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास यूज करिवो. टोटल मास नेट पुलिंग फोर्स डाउनवर्ड इज 60 बा 6g, 4 kg मूविंग कर अपवर्ड 4g. सो 6c 4g बाय टोटल मास केते ना 6 प्लस 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ अ स्ट्रेस. वेरी सिंपल क्वेश्चन. स्ट्रेस र फॉर्मूला को जीवा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. फोर्स इज m1 l1 t minus 2, एरिया l2, that is m1 l minus 1 t minus 2. So option A1. Next question, the phase difference between displacement and acceleration of a particle in simple harmonic motion. No doubt जदि आम देखिए फॉर्मूला अनुसार भी तो आंसर पाई रेडियन आसो. A is equal to minus omega square y. Negative sign indicates that acceleration is along the opposite direction of a displacement. First
सो ये कॉन्सेप्ट आम जो जीवा ताले पाई रेडियन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो डेफिनेशन भी अच्छी रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अपोजिट्स द मोशन रिस्टोरिंग फोर्स जो रहिबो ता माने एक्सेलरेशन सेट रहिबो सो एक्सेलरेशन कोन होची ना अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सो आंसर इज पाई रेडियन नेक्स्ट क्वेश्चन द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज एनर्जी इक्विवेलेंट एटा होची आइंस्टाइन्स मास एनर्जी प्रिंसिपल दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर सो एम रो वैल्यू होची 0.5 ग्राम ऑप्शन देछि सब जगह जूल रे सो यू हैव टू कैलकुलेट माने यू हैव टू कन्वर्ट 0.5 ग्राम इनटू किलोग्राम सो 0.5 किलोग्राम मीन्स 10 to the power minus 3 into c square lighter velocity that is 3 into 10 to the power 8 square that is 0.5 into 10 to the power minus 3 into 9 into 10 to the power 16 so that is 4.5 into 10 to the power minus plus 16 minus 3 that is 13 joule so 4.5 into 10 to the power 13 joule that is option C.